What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 18th of August and today was Nifty's weekly expiry. This is the third weekly expiry under this new CAS regime and all three expiries have been completely different from each other. The very first expiry, the Nifty traded normally for majority part of the day, but then the straddle went back to 105 at 3:15 p.m. And the next expiry, the straddle opened at 140 and it was trading at a meager 30 rupees before the auctioning started. And today the straddle opened at a meager 90 rupee premium and the straddle held almost 50 rupee in value till 3:15. And today's interesting thing is the entire day Nifty moved just 75 points, well within what the straddle was pricing in, but the last 30 minutes itself the Nifty moved another 75 points. Now, while the US markets and all other global markets are making fresh all-time highs, we are struggling even to cross 25,000 levels. Nifty has come back again from the 24,600 highs and currently we are trading 500 points lower to what the last week's highs have been. And tomorrow is Sensex 1DT and the premiums are pretty minuscule. The risk reward for the option writer is not at all suitable, but at the same time it's not like because the premiums are so cheap the option buyers are making money, because the markets have not been moving much even for the option buyers to make money. And today during the CAS the 2 rupee option went to 30 and immediately crashed to 0 and the indicative prices were again all over the place. Now the question from the trading community is how fair is it to settle the contracts worth lakhs of crores of notional exposure by the price discovery by this auction which is of just few hundred crores. Now whether we are going to get any tweaks in the system, time has to tell, but as of now the system is here to stay. Let's plan for tomorrow Sensex 1DT. Let's get to the terminal. Alright, मार्केट पूरा दिन एक 70 पॉइंट के रेंज में रहा एंड जस्ट लास्ट 30 मिनट्स में 75 पॉइंट मूव कर दिया. सो येस, द रियलाइज्ड मूव्स वर वेल विद इन what the premiums were implying, but again expiry day game has been completely changed because abhi expiry needs to be considered like a 1DT. There is no 0DT anymore because मैं सुबह ट्वीट किया था कि 85 रुपीज़ का स्ट्रैडल है and 50 rupees तक almost hold करेगा because 50 rupees is what the fair price is. Yes, on some days maybe the markets will not move more than 20 points, but on the other day you will get like a 70, 80 point, 90 point candle also. So in my opinion 40 to 50 is what the fair price is. तो अगर expiry day पे अगर 90 rupees का भी अगर straddle open होता है तो you will maximum your trading for a 1DT kind of a premium behavior where the straddle would decay and go to somewhere around 40 or 50 rupees. So you are trying to capture as much as possible within this much of a premium crush. And yes, अगर ऐसे दिन आता है तो then you must not be having too much of a difficulty. But अगर ऐसे वाले moves आ जाता है once in a while where the markets actually give like these extended V-shape kind of a moves, then people would be having a hard time navigating these expiries. Yes, last 2 हफ्ते से ऐसे कुछ moves आए नहीं है and उसका reason भी है कि because the algorithms are not fully in action and पूरे लोग पूरे साइज से साथ ट्रेड नहीं कर रहे, because of which इतना spikes होने दो, इतना trappings होने दो आए नहीं. But probably it's a matter of just like week or couple of weeks where like everybody would probably consider this as the new normal and start trading, and उसके बाद एक्सपायरी पे जैसे ट्रैपिंग होते हैं वैसे ट्रैपिंग्स होना शुरू हो जाता है. द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, लेट्स से ऑन अ वेरी डिफिकल्ट डे, लेट्स ऑन अ वेरी वोलेटाइल एक्सपायरी, लेट्स से आपका लॉस x है till 2 o'clock आपका लॉस x है, तो देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट बाय 3:15 इसका कम से कम हाफ ऑफ द लॉस वुड हैव बीन रिकवर्ड. 0.5x पे ऑलमोस्ट लॉस आ जाता था बिकॉज लाइक पोस्ट 2 o'clock द theta decay or that whatever the crush is kind of very accelerated. But अभी क्या हो जाता है कि 2:30 के बाद भी प्रीमियम होल्ड करना शुरू करता है. इफ़ यू नोटिस टुडे ऑल्सो ये जो प्रीमियम है, दिस प्रीमियम ऑलमोस्ट केम टू समवेयर अराउंड 50 रुपीज़. You can notice here 50 रुपीज़ के आसपास, ऑलमोस्ट 130 पे के आसपास ही 50 रुपीज़ पे आ गया था. एंड यू कैन नोटिस इवन एट 3 o'clock द स्ट्रैडल वॉज अगेन ट्रेडिंग एट 50 रुपीज़. सो 130 पे आपका ऑलमोस्ट ट्रेडिंग डे डेड जैसे हो जाता है. एंड इफ़ यू आर इन अ मार्क टू मार्केट नेगेटिव एट 130, the next complete 1 to 1.5 2 hours would actually accentuate your losses and not reduce it. क्योंकि पूरा दिन मार्केट ने 75 पॉइंट मूव किया एंड लास्ट में एक 75 पॉइंट का मूव आ गया. तो इमेजिन लाइक द मार्केट हैज़ बीन वोलेटाइल इन द फर्स्ट मॉर्निंग सेशन एंड उसके बाद मार्केट्स
ने आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसे मूव दे देता है तो देन डबल वैमी लग जाता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस काइंड ऑफ अ रेजिम. ठीक है, सो ऑल दैट सेड लेट्स टॉक अबाउट द सेंसेक्स ऑप्शंस. तो सेंसेक्स पूरा दिन बिल्कुल डीके नहीं दिया एंड वन ऑफ दोज डेज वेयर यू नो पूरा का पूरा जो 660 से लेके 550 तक 100 पॉइंट का जो क्रश था वो ओवरनाइट आ गया एंड पूरा दिन मार्केट्स ने विपसॉ करता रहा एंड इवन बाय द एंड ऑफ द डे देयर वाज एब्सोल्युटली नो डीके व्हाटसोएवर बिकॉज दिस इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ अंडर प्राइसिंग ऑफ रिस्क एंड 550 रुपीज़ पे आज स्ट्रैडल क्लोज दिया है. सो मोस्ट प्रॉब्ली 20-30 पॉइंट्स का क्रश के साथ कल ओपन होने वाला है एंड प्रॉबली 450 तक क्लोज मिलना चाहिए. तो 100 पॉइंट्स, नॉट इवन 100 पॉइंट्स, प्रॉबली 60-70 पॉइंट्स डीके के लिए कल डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर्स या शॉर्ट वॉल ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहिए, विच अगेन इज एन एक्सट्रीमली पुअर रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन फॉर द ऑप्शन राइटर्स. तो डायरेक्शनल ट्रेड्स क्या ट्रेड करना पड़ेगा? यू कैन नोटिस दैट ये जो प्रीवियस जो रेंज था, प्रीवियस जो लो था, उस रेंज को ऑलरेडी मार्केट ने तोड़ दिया है एंड उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया है. सो टुमारो विल बी लुकिंग एट सेल ऑन राइज काइंड ऑफ अ मार्केट. नाउ निफ्टी इज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 24,150 लेवल्स. गलती से अगर मार्केट 24,000 के आसपास आता है तो देन देर इज अ चांस दैट मार्केट्स माइट फाइंड सपोर्ट एंड कम गिव अ क्विक बाउंस. सो अगर 24,000 के आसपास निफ्टी आता है विच उसका इक्विवेलेंट जो है समवेयर अराउंड 76,500 लेवल्स, तो 76,500 के आसपास अगर सेंसेक्स आता है तो दैट इज अ वेरी गुड बाइंग लेवल फॉर टुमारो. बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन मतलब लाइक 77,300 के नीचे ओपन होता है एंड फर्स्ट 10-15 मिनट्स के अंदर ये जो लो ब्रीच कर देता है तो देन वी शुड बी डेफिनेटली गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड यस, स्टॉप लॉस जो है दिस पर्टिकुलर जो ब्रेकडाउन लेवल है विच इज समवेयर अराउंड 77,300, तो प्लस 30 पॉइंट्स दे दो तो 77,330 शुड बी द स्टॉप लॉस लेवल फॉर टुमारो इफ यू आर गोइंग शॉर्ट. एंड यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ब्रेकडाउन ट्रेड्स को भी ले सकते हैं या इफ यू आर नॉट दैट एग्रेसिव यू कैन वेट फॉर द रीटेस्ट. ठीक है, नाउ इफ वी ओपन अ गैप डाउन बिकॉज मार्केट्स ने ऑलमोस्ट डे लो के आसपास क्लोज दिया है एंड ऑक्शनिंग में भी मार्केट्स ने फेयर प्राइस डिस्कवरी जो किया है वो लोअर साइड ही किया है. तो लेट्स से मार्केट्स में कल अगर एक थोड़ा बहुत गैप डाउन आ जाता है तो देन गैप डाउन होते ही लेट्स नॉट जंप इनटू द ट्रेड. ईदर वी लुक फॉर द मार्केट्स टू कम नियर समवेयर अराउंड 76,900 लेवल्स एंड यहाँ पे एक पैटर्न मिलता है लो टाइम फ्रेम पे, देन यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं. नाउ जब मार्केट इस हाई पे इस गैप को क्लोज करने आएगा तो देन दैट इज इक्विवेलेंट टू समवेयर अराउंड 24,040 लेवल्स ऑन निफ्टी. तो इफ यू आर ट्रेडिंग स्प्रेड्स देन 24,040 पे भी एक ट्रेड बनता है एंड ऑफ कोर्स हाफ साइज जाना चाहिए. अगर मार्केट्स 24,000 के आसपास आके थोड़ा पुट राइटर्स को डराने के लिए फिर से आ जाता है देन वहां पे एक और हाफ साइज हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, नव अगर मार्केट फर्स्ट टिक पे गैप डाउन ओपन करके वापस आना शुरू कर देता है देन वी लुक फॉर द रेजिस्टेंस दैट इज समवेयर अराउंड 77,300 लेवल. तो 77,300 लेवल पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. नव अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके ऊपर चला जाता है तो देन मेरे लिए नो ट्रेड डे रहेगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज मार्केट्स ने आज भी थोड़ा बहुत काफ़ी लल काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन दिया है एंड अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करना शुरू करता है तो देन वी माइट एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरिंग रैली ऑल्सो. बट उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शॉर्ट कवरिंग रैली. तो अगर मार्केट इधर फ्लैट ओपन करके ऊपर जाना शुरू करता है मोस्ट प्रॉब्ली आई जस्ट लेट इट गो एंड आई लेट द मार्केट्स गिव मी सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड मूव. तो मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा समवेयर अराउंड दिस 77,900 के आसपास में शॉर्ट करना पसंद करूंगा अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है तो. बट अगर मार्केट गैप खुलता है लेट्स से 77,600 के आसपास अगर मार्केट गैप खुलता है तो देन हम लोग यहाँ पे एक मूव फेड के लिए रिवर्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शंस. अगर मार्केट 77,600 77,700 के बीच में ओपन करता है तो देन विल ट्राई टू फेड द मूव्स इन बोथ द डायरेक्शंस. तो मार्केट एक अगेन रेंज के बीच फंस जाता है एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड देयर हैज लॉट ऑफ प्राइस डिस्कवरी विद डिसेंट वॉल्यूम्स अराउंड दीज लेवल्स. तो मार्केट इसके नीचे ही वाइब्रेट करने को ट्राई करता है. सो दैट इज वाई अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो आई लेट द मार्केट्स कम टू समवेयर अराउंड 77,900 लेवल एंड यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करूंगा एंड देन इसको वापस अगर 77,500 या 77,400 के आसपास आएगा तो देन ऑल्सो आई इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड. नाउ टुडेज मार्केट हैज बीन
रिलेटिवली बेनिवोलेंट फॉर द राइटर्स। तो कल थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइक इतना ज़्यादा राइटर्स को सपोर्ट ना दे, बिकॉज ऑलरेडी 550 रुपीज़ का स्ट्रैडल है एंड कल 440 430 के नीचे मैं देख नहीं रहा कि क्लोज देगा, बिकॉज कम से कम 350 रुपीज़ पे स्ट्रैडल ओपन करना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स तो ये सीएस के लिए प्राइसिंग करना चाहिए। इवन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वी आर ओनली टारगेटिंग फॉर दिस 200 पॉइंट्स, वी आर फाइटिंग फॉर दिस 200 पॉइंट का क्रश एंड टुमारो विल probably be fighting for probably 80 to 100 points of crush. So in my opinion that should not be a good risk reward for the option writers. तो अगर कल आपको कहीं पे भी डाउट आता है ट्रेड करने के लिए तो 500 रुपीज़ का स्ट्रैडल है, अज्यूम दैट 500 रुपीज़ का स्ट्रैडल, लेट द मार्केट मूव एटलीस्ट 400 पॉइंट्स किसी डायरेक्शन में, ओपन से 400 पॉइंट्स मूव करने दीजिए, देन उसके बाद ट्राई टू फाइंड सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस एंड ट्राई टू फेड द मूव्स। यस, इसका मतलब ये नहीं कि लाइक विल नॉट गेट अ ट्रेंडिंग डे ऑफ 800 पॉइंट्स, बट जनरली ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ अ विक्स एनवायरनमेंट दिस इज द मोस्ट लाइकली काइंड ऑफ एन आउटकम जहाँ पे मार्केट्स कंटिन्यूसली रिवर्स करता रहता है, बिकॉज गामा जो है वो नेगेटिव गामा रहता है, तो लाइक यूजुअली हेजर्स आ जाते हैं एंड थोड़ा बहुत मार्केट मूव करता है तो वहाँ से रिवर्शंस आना चालू हो जाता है। दैट इज वाई अगर 500 पॉइंट का स्ट्रैडल है ऑन द डे ऑफ नॉन एक्सपायरी डेज, एटलीस्ट 80% ऑफ दैट स्ट्रैडल वैल्यू 400 पॉइंट कम से कम मार्केट्स को मूव होने दीजिए एंड उसके बाद फाइंड आउट द वेयर द नेक्स्ट और इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज एंड वहाँ से हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड लेने के लिए प्लान कर सकते हैं। नाउ टुमारो अगेन इफ यू वांट टू कैरी एनी ट्रेड्स फॉर द पोजीशन, अगेन मैं बोलूँगा कि लाइक वर्टिकल स्प्रेड्स ही लेके जाओ, नेकेड ऑप्शंस सेल करना बहुत ही बेकार रिस्क रिवॉर्ड है एज ऑफ नाउ, सो आई वुड डेफिनेटली नॉट सजेस्ट दैट। एंड ऑप्शन बाइंग करना भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज यू कैन सी दैट इफ समबडी बॉट द ऑप्शंस टुडे आई थिंक दे वुड हैव ऑल्सो नॉट मेड मनी अप अंटिल द लास्ट मोमेंट। ठीक है, लास्ट मोमेंट में थोड़ा बहुत पैसे बनाए होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इवन दे वुड हैव नॉट मेड एनी मनी बिकॉज दिस वॉज प्रैक्टिकली अ डेड मार्केट हियर। ठीक है, सो आई होप द रेगुलेटर इज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ what the markets have become post CAS, and I hope the sanity prevails, and I hope you guys had a decent expiry today. I'll see you guys again after tomorrow's market action. Till then, take care, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.